We were talking about the expectations from the client and our audit approach. So we need to deep dive what we have mentioned in our audit report. We just not show the MIS simply A minus B is equal to C, but we need to provide the root cause and the detailed analysis of the same. And we need to understand that every observation should come with a action plan and the accountability of the person who is responsible for the same. So like in our technical audit and our technical observation, I should say, most of the observations are related to the material reconciliation variances, underbilling to the client and overbilling to the contractor. So while we are mentioning all those things, we also need to mention that the what is the failure in that case now. uh, who was the responsible person, who was the responsible department for the same, due to which the same has occurred, and what is the reason of the excess wastage of the material. It must be the rework, it must be negligence in part of the material management, and it must be some other things also. So we need to go and deep dive in all those segments so that we can provide a uh, clear picture of the thing and clear picture of the scenario to the management. And also we need to uh, consider fraud assessment also in our technical audit, that if there is any chances of the fraud, if metal variances is there, so it is only just a wastage, it's a rework, or is there any fraud. तो वो we need to assess, we need to find the root cause, and accordingly we need to आवाज नहीं आ move. रही सर आवाज Okay. कुछ आवाज नहीं आ रहा Hmm. Am I audible now? यस सर अभी आ रहा है Okay, all right. यस यस Okay, okay, guys. Sorry. सो हम बात कर रहे थे कि आवर ऑडिट अप्रोच इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल ऑडिट. सो our approach should be in line with the expectation of the client and should be in line with the methodology of the number trees way of work. So while we are reporting anything to the client, for example, I mentioned the metal reconciliation, the overbilling to subcontractor and underbilling to the client. So those some of the observations which come frequently in our audit report from technical team. So we just can't mention that there is a metal variance of certain percentage in this segment and comes to a a loss of amounting to rupees this much. After that reporting, we need to deep dive, we need to find the root cause. What is the root cause? Is there the excess consumption, excess wastage of the metal while doing the work? Is there a rework, and is there material mismanagement? Is there a loss, is there a loss of material, theft of material? So those things we also need to cover. If there is overbilling to subcontractor, then who is the responsible person for the same? Why the same has occurred? What is the reason behind that? So maybe it again it might be because of the rework, so that we need to pay the subcontractor for the rework, and that comes on the company's part. Or it might be a duplicity of the work certified to the subcontractor, or it might be clearly a picture of fraud and overbilling to the subcontractor. So all those root cause, all those deep dive exercise we need to do before writing something in our audit report. Again, we need to provide a clear accountability of the person, time bound action plan on the same, that if there is a overbilling, then what management is going to take the action on that. Management, I mean to say the side person. So if there is overbilling from the billing department, if there is some underbilling to the client from the billing department revenue team,
So now what's the action plan and what's the you know timeline for the same? All those areas which need really improvement from the technical audit team, which sometimes is missing from most of the team members. So those things we need to cover in while we are doing any audit at any client place. So we need to provide those input also from our side. Now let's come to the illustrative part, like where we need to enhance our analysis more. Like I already mentioned, the reconciliation of the wastage and the reconciliation of the material. So while we are doing our metal reconciliation activity exercise, we need to compare our reconciliation always with the MIS, with the one the reconciliation which client has provided to us. Every site reconciliation is a regular process, at least for the major item like reinforcement, concrete, cement, those materials. Every site are preparing their reconciliation statement, and once we are there, so we need to again prepare our reconciliation statement. So we need to compare both of the statement and find the variances. Why there are variances? Are the variances on the inward side? The variances are on the consumption side? The variances are on the closing stock? So whatever is the variances, we need to report and find the actual reason of the same. Why the variances are there in our reconciliation and in the client reconciliation. Client, I mean to say, for the auditee for whom we are doing the work. So in most of the reports we are finding that we are showing the reconciliation, we are showing the variances, but there is no deep dive investigation or root cause has been provided. So we are just providing that there is a excess wastage of reinforcement, 7% wastage is there, which is over and above the permissible limit, loss amounting to rupees itna, that's it. Why that has happened? We need to find that also. So if there is any questions or something, we will cover after the session only. And the same is come with the sand moisture content variances. So in sand reconciliation, most of the time we are missing the moisture content part. So those things also need to be covered while we are doing the sand reconciliation. The corrective action recommendation should also be a part of our audit report. So अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, अगर कोई वेरिएंसेस है रिकन्सिलेशन में, तो उसका करेक्टिव एक्शन क्या है? अगर हमें दिख रहा है कि कहीं पर एक्सेस कंजम्पशन हो रहा है, सो लाइक जैसे रिइंफोर्समेंट की बात करें तो वहाँ लैप एंड चेयर का कुछ इशू रहता है, तो उन चीज़ों पे वी नीड टू प्रोवाइड आवर करेक्टिव एक्शंस ऑल्सो, कि अगर ये अब इतना अगर बैलेंस अभी प्रोजेक्ट बचा हुआ है, लेट्स सपोज अभी 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, 50% बाकी है, सो क्या कुछ ऐसे करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं जहाँ पर ये रिकन्सिलेशन का जो ओवरऑल वेरिएंस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं? तो दोज एरियाज ऑल्सो नीड to be covered in our audit report and expected from the technical team who is doing these kind of activities aside. Because as an engineer, as a technical person, आप लोगों को ज़्यादा आइडिया रहेगा कि इसके क्या करेक्टिव एक्शंस हो सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, तो वो आप लोगों की साइड से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी हम आगे बात करेंगे टेक्निकल एंड कॉमर्शियल टीम कोलैबोरेशन के बारे में भी, सो उसको हम वहाँ के लिए पार करके रखते हैं. नाउ लेट्स कम टू द बिलिंग डिस्क्रिपेंसीज. हम अनबिल्ड या अंडर सर्टिफाइड अमाउंट को क्लाइंट बिलिंग में दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके लिए ट्रैकिंग एंड फॉलोअप का क्या मैकेनिज्म है वो हम लोग शो नहीं करते हैं. हमने दिखाया कि चलो कुछ तो अंडर बिलिंग है जो हमें क्लाइंट को रेज करनी थी, बट वो अंडर बिलिंग कैसे रह गई? और लेट सपोज कि आप साइट पे गए हो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, हमें वन टाइम ऑडिट मिला, हम लोग साइट पे गए, हमने फाइंड आउट किया कि भाई 10 करोड़ की आपकी अंडर बिलिंग है. तो वी नीड टू ऑल्सो प्रोवाइड कि ये अंडर बिलिंग होने का रीज़न क्या था, कौन से कंट्रोल साइट पे नहीं थे जिसकी वजह से अंडर बिलिंग हुई है. तो क्या साइट पे ट्रैकर नहीं मेंटेन हो रहा है बिलिंग के लिए? क्या साइट पे कोई मतलब रेवेन्यू लीकेज के लिए कोई प्रिवेंशन का कंट्रोल नहीं है? मतलब किस रीज़न की वजह से ये ऐसा हुआ है जो कि वो साइट वालों नहीं रेज कर पाए, बट हमें जाके वो मिल गया और हमने उनको अलग से बताया, जिससे कि गोइंग फॉरवर्ड आगे पूरे जो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है उसमें ऐसा कुछ मिसिंग ना रहे या फिर डिले बिलिंग ना रहे. ठीक है, तो वो चीज़ हम लोगों को असरटेन करनी है, फाइंड आउट करनी है, देन वी हैव टू रिपोर्ट अकॉर्डिंगली.
वी जस्ट कांट रिपोर्ट कि भाई इतने रुपए की अंडर बिलिंग एंड ये आप क्लेम कर लो, ठीक है, वो तो एक हमने मॉनेटरी इम्पैक्ट तो बता दिया, लेकिन अब इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, आगे ये दोबारा रिपीट ना हो उसके लिए क्या करना है साइट को, वो हमारी तरफ से एक बेटर इनपुट हो सकता है, ठीक है, जो मॉनेटरी एंड प्रोसेस दोनों को इम्प्रूव करेगा। तो ये चीज़ ये माइंडसेट के साथ हमें अपनी रिपोर्ट्स डिलीवर करनी है। जैसे रेट वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो आई डोंट नो रेट वेरिएशंस कहीं कई जगह पर कॉमर्शियल टीम कर ले रही है, कहीं जगह पर कोई टेक्निकल टीम भी कर रही होगी। तो अगर रेट वेरिएशन हम लोग चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें देखना है कि जो क्वांटिटीज़ हैं, अगर SAP सिस्टम आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, आप लोगों को एक्सेस है, तो एज़ पर SAP क्या क्वांटिटीज़ हैं, सप्लायर के इन्वॉइसेस के साथ क्या वेरिएंसेस हैं उसमें, जो क्लाइंट से पेमेंट रिसीव्ड हुई है उसमें क्या क्या रेट कंसीडर हुआ है, इंडेक्सेशन सही लगाया नहीं लगाया, फॉर्मूलाज सही लगाया नहीं लगाए। समटाइम्स यू विल फाइंड कि सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जो उनका जो कंप्यूटेशन वाली शीट होती है, एक्सेल जो होता है आरएबेल में, जहाँ पर रेट वेरिएशन या प्राइस एस्केलेशन कंप्यूट किया होता है, वहाँ पर लिंकिंग ही गलत शीट से हो रखी होती है, जिसकी वजह से पूरा अमाउंट ही चेंज हो रखा होता है। तो वो उस लेवल पर जाके हम लोगों को चेक करना है, जिससे कि हम जो भी क्लाइंट का अगर कोई वहाँ पर रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो हम उसको डिस्कवर करके एंड अप्रोप्रिएटली शो कर सकें। कोर कटिंग की एक हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोर कटिंग का कई जगह हम लोगों को ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं कि कोर कटिंग हुई है, उसकी वजह से जो रिवर्क होना है और जो मेटेरियल है वो वापस से कंज्यूम होना है, जो भी रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस हैं, तो वहाँ पर हमें डीप डाइव उसमें और करना है थोड़ा सा। अगर कोर कटिंग हुई है तो उसमें क्या रेनफोर्समेंट तक कट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है ना, कि और कोई इसमें कंसर्न है। कोर कटिंग एक सिंपल चीज़ हो गई, अगर वो इन्फोर्समेंट तक जाके कट हुआ है, कितना कितना डेप्थ कट हुआ है, कितना कट होना था, कितने कोर कट होने थे एज पर स्टैंडर्ड, कितने कोर कट हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को उस लेवल पर लिखनी पड़ेंगी। मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन हमें जस्ट we just can't mention the observation as a low risk observation. We need to find the things which may convert at low risk observation to the high risk observation. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारी लो रिस्क ऑब्जर्वेशन हाई रिस्क में जाएंगी या मीडियम में जाएंगी, बट हमें उस हिसाब से एनालिसिस एक बार अपना करना पड़ेगा कि हमें एक हिंट तो मिल गया कि इस जगह पर इशू तो है, लेकिन वो इशू कितना हाई या कितना लो है उसके लिए हमें एक बार डीप डाइव करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं उसमें डीप डाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं जो कोलैबोरेशन एंड प्रोटोकॉल्स की टेक्निकल टीम के। तो देखिए ये चीज़ irrespective of the के who you are from the technical team, from the commercial team, you are a team leader or you are an associate, ये हम सब लोगों की ड्यूटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपना डेली जो वर्क स्टेटस है वो अपने TL को, और TL है तो वो अपने कंसर्न मैनेजमेंट को रिपोर्ट करे, irrespective of anything अगेन। तो जो भी हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि डेली बेसिस पे काम कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई काम शुरू हुआ है तो शाम को वो कंप्लीट ही हो जाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट कंप्लीशन, इट्स अबाउट स्टेटस, है ना, कि अगर हमने आज क्लाइंट बिल चेक करना शुरू किया है तो क्लाइंट बिल में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। मे बी अभी हम डाटा ही कलेक्ट कर रहे हैं, या आज मेरे पास सारा डाटा आ चुका है, आई एम वेटिंग फॉर द ड्राइंग्स, या मेरे पास ड्राइंग्स आ चुकी है, आई एम वेटिंग फॉर द एक्सेल्स, या एनीथिंग, मतलब जो भी स्टेटस है, जस्ट वी नीड टू कम्युनिकेट द सेम टू द रिपोर्टिंग पर्सन। तो अगर आप साइट पर आप टीम मेंबर हैं तो यू हैव टू रिपोर्ट द सेम टू द TL, अगर आप TL हैं तो यू हैव टू रिपोर्ट द स्टेटस टू द मैनेजमेंट एट ऑफिस। ठीक है, ये चीज़ विदाउट फेलियर होनी चाहिए। इससे होगा कुछ नहीं, इससे जस्ट इतना होगा कि सामने वालों को एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं। क्योंकि देखो कई एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिन्होंने 3-4 दिन लग जाते हैं कंप्लीट होने में। अगर मान लो आपने इन्फोर्समेंट का रिकन्सिलेशन उठाया तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको जाके स्टॉक लेना होगा, अगर साइट पर अलग अलग स्टॉक पड़ा है तो आपको WIP कलेक्ट करना होगा, आपको जो वर्क कंप्लीशन है वो सर्टिफाई करना होगा। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वन डे एक्टिविटी। तो बट स्टिल अगर आपने आज रिकन्सिलेशन शुरू किया है तो शाम को बिफोर एंड ऑफ द डे यू कैन कम्युनिकेट कि भाई आज मैंने अपना फिजिकल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, फिजिकल साइन ऑफ हो गया है, फिजिकल का स्टेटस ये है, टुमारो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस थिंग। तो उस हिसाब से हमारा डेली वर्क स्टेटस विदाउट फेलियर ये रिक्वायर्ड है। इसमें कोई भी किसी के लिए भी वो नहीं है कि आप लोगों को हम लिबर्टी देंगे कि आपको क्यों नहीं फॉलो करना है। विदाउट फेलियर ये फॉलो होना ही होना है फॉर एवरीवन।
आपकी जो डेली डिस्कशन आप लोग साइट पे कर रहे हैं उसमें आपको अलाइन होना है, इंक्लूड होना है। देखो कई बार क्या हो रहा है मोस्टली चीज़ों में कि टेक्निकल टीम ऑब्जर्वेशन अपनी कॉमर्शियल टीम को दे रही है, देन कॉमर्शियल टीम ट्राइंग टू टेकिंग अप टू द मैनेजमेंट फर्दर। सो ऐसा नहीं होना है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस हैं, एंड नॉट जस्ट टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस, फॉर कॉमर्शियल ऑब्जर्वेशंस ऑल्सो, जो भी ऑब्जर्वेशन है यानी एक ऑडिट रिपोर्ट में या एक हमारा एमओएम में जो भी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं वो ऑब्जर्वेशन डिस्कशन करने के टाइम पर टेक्निकल टीम को भी होना ज़रूरी है। तो जिससे आप लोगों को भी क्लैरिटी आए कि क्लाइंट उसके ऊपर क्या रिवर्ट दे रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑल्दो हमारी जो कॉमर्शियल टीम है दे आर कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस ऑल्सो, बट स्टिल यू आर बेस्ट इन योर फील्ड, ठीक है, यू आर द इंजीनियर्स। तो समटाइम्स क्लाइंट अगेन वहाँ पर इंजीनियर ही बैठा है जिसके साथ वो ऑब्जर्वेशन डिस्कस होंगी, तो वो मे बी इट्स पॉसिबल कि वो समटाइम कुछ ऐसा रिप्लाई या अपने रिमार्क्स दे दे जो कि शायद कॉमर्शियल टीम उसको वापस से क्रॉस ना कर पाए। So for that purpose also, engineer or a person from a technical team has to be there while discussion of the observations of the technical team. And again ये तो हो गई सेकंड। इससे पहले जब भी आप कोई ऑब्जर्वेशंस अपने टीम लीडर को सबमिट करेंगे, सो दैट ऑब्जर्वेशन हैज़ टू बी फुल फ्लेज कंप्लीट बाय देयर ओन। मतलब आप वो पहले से ही डिस्कस आपको कर लेनी चाहिए कंसर्न पर्सन के साथ एट साइट विद द क्लोजर रिमार्क्स ऑन ईमेल। अगर ये हम लोग हर मीटिंग में अपनी डिस्कस, हम ट्रेनिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जब आप क्लोज कर दे रहे हैं, फाइनल क्लोजर ईमेल रिस्पेक्टिव एचओडी को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर वो आपकी ऑब्जर्वेशन क्लोज कभी भी नहीं मानी जाएगी। अगर कोई रिकन्सिलेशन है, आपने उसको क्लोज किया, साइड से डिस्कस भी कर लिया, उसने एग्री कर लिया, आपको लगता है कि हाँ सब ठीक है, स्टिल गो टेक योर लैपटॉप, ड्राफ्ट एन ईमेल, डियर सर एज वी डिस्कस दीज आर द वेरिएंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज़ इतना ड्यू टू दिस रीज़न, उसको मेल कर दो। एंड इफ देयर इज एनीथिंग, एनी रिमार्क्स, एनी इनपुट फ्रॉम योर साइड, प्लीज़ रिप्लाई। इससे क्या हो गया ना, आपकी ऑब्जर्वेशन वो ऑफिशियली क्लोज हो गई ना। तो जब आप फाइनल क्लोजर मीटिंग में राउंड द टेबल बैठेंगे जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट इंचार्ज होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, तो वहाँ पर वो एक बेस रहता है हमारे लिए कि येस दिस इज़ ऑल डिस्कस एंड क्लोज विद द रिस्पेक्टिव हेड। तो वो चीज़ मैंडेटरी है। कोई भी ऑब्जर्वेशन आपकी क्लोज होती है, आपने जब भी कंप्लीट किया है, आपको फर्स्टली वो डिस्कस करना है रिस्पेक्टिव पर्सन के साथ, एंड आफ्टर द डिस्कशन पुट इट ऑन मेल for documentation and closure purpose. Now let's come to the report part, report development standards. So guys देखिए यहाँ unfortunately हम देखते हैं कि टेक्निकल टीम से क्या हो रहा है कि हम लोग खाली ऑब्जर्वेशन देते रहे हैं, अपनी वर्किंग्स दे दे रहे हैं, काइंड ऑफ एक्सेल्स हमने दे दी, अपना रिकन्सिलेशंस दे दिए, सारी चीज़ दे दी कि ये लो जी अब अपना रिपोर्ट आप बनाते रहना। दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। वी नीड टू ड्राफ्ट आवर ऑडिट रिपोर्ट बाय आवरसेल्फ, एंड दिस इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ समवन एल्स बट द ड्यूटी ऑफ आवर सेल्फ ओनली। अगर मैंने कोई ऑब्जर्वेशन क्लोज करी है, चाहे वो रिकन्सिलेशन है, चाहे वो अंडर बिलिंग, चाहे ओवर बिलिंग, एनीथिंग, वो ऑब्जर्वेशन मैंने, मेरी फाइंडिंग है तो वो मुझे ही लिखनी होगी और मुझे अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर में ड्राफ्ट करके और फिर आगे सबमिट करनी है जो भी उस रिपोर्ट को कलेक्ट कर रहा है, जो भी उस रिपोर्ट को मर्ज करके फाइनल दे रहा है। सो दैट पर्सन मोस्टली द टीएल, तो वो आपको क्लोज करके ही देना है। हाँ, अगर उसमें कोई चैलेंज आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, कोई इनपुट चाहिए आपको, जैसे रिकन्सिलेशन है तो आपको स्टोर्स के डाटा के साथ लिंक करना है, या उसमें और कोई मेटल का वैल्यूएशन चाहिए, ऑल्दो आप सब लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं वो सब चीज़ें। स्टिल इफ़ यू नीड एनी कनेक्ट फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम कॉमर्शियल टीम, सो दे आर देयर, है ना, उनसे कनेक्ट करो, फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालो, बट ड्राफ्ट योर रिपोर्ट बाय योरसेल्फ ओनली, ठीक है। उसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं है। आपकी रिपोर्ट देने के बाद ऑब्वियसली दे विल ड्राफ्ट इट अगेन एट फॉर द नेक्स्ट लेवल प्रेजेंटेशन पर्पस। उसमें हो सकता है वो चीज़ें कुछ चेंज करेंगे, कुछ रीड्राफ्टिंग करेंगे। सो बिफोर इशुएंस ऑफ द रिपोर्ट दिस इज़ योर ड्यूटी टू चेक योर पॉइंट अगेन कि भाई जो मैंने पॉइंट दिया था वो अब किस तरीके से ड्राफ्ट हुआ। कई बार क्या होता है ना, ड्राफ्ट करते टाइम माइंडसेट अलग होता है तो पर्सन उसको अलग मैनर में ड्राफ्ट कर देता है, उसकी लैंग्वेज कुछ और कह रही होती है, आप लिखना कुछ और चाहते हो। मतलब एज अ टेक्निकल पर्सन आपने एक चीज़ ड्राफ्ट करके दी, एज अ कॉमर्शियल टीम हो सकता है वो उसको किसी और एंगल से ड्राफ्ट करके दे देगा। तो वो जो वर्डिंग्स हैं वो मैटर करती हैं फिर,
तो वो वर्डिंग से उस पॉइंट का पूरा जो ग्रेविटी है वो चेंज ना हो जाए, उसकी पूरी ग्रेविटी ना बदल जाए। तो वो चीज़ से बचने के लिए डेट्स आवर ड्यूटी कि जो हमारा पॉइंट गया है वो पॉइंट फाइनली क्या ड्राफ्ट होके जा रहा है वो हम एक बार चेक कर लें, और अगर हमें वहाँ पर कुछ चेंज की ज़रूरत है तो हम उसको वहाँ पर अकॉर्डिंगली इंक्लूड करवा के मॉडिफाई करवाएं। एक रिपोर्ट के जितने भी सेगमेंट हैं हमारे, जितने भी कॉलम्स हैं, वो सब फिलअप होने चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि बस आपने ऑब्जर्वेशन ड्राफ्ट कर दी, ऑडिट फाइंडिंग में लिख दिया, फाइनेंशियल इम्पैक्ट डाल दिया, डेट्स इट। नहीं, अगर उसमें रूट कॉज का कॉलम है तो रूट कॉज भी देखना है, रिकमेंडेशन का कॉलम है तो रिकमेंडेशन भी देखना है, मैनेजमेंट एक्शन प्लान का कॉलम है तो मैनेजमेंट एक्शन प्लान भी देखना है। इट्स मतलब ये कंप्लीट है। मतलब आप ये मत सोचो कि अब ये किसी और की ड्यूटी है। आपने एक मेहनत करी है, आपने साइड पे जी जान लगाई है, आपने अपना पूरा वहाँ पर माइंड इम्प्लीमेंट करके कुछ आप फाइंड आउट करके लाए हो, तो वो आपको ही शो करना है आगे। ठीक है, उसको आप डिवाइड मत करो कि मैंने तो किसी और के लिए बस एक ऑब्जर्वेशन निकाल के दे दिया, नाउ इट्स हिज जॉब के वो कैसे उसको शो करेगा। नहीं, ये हमारी ही ड्यूटी है। मैंने कोई ऑब्जर्वेशन निकाली है तो मुझे ही शो करनी है, मुझे ही प्रेजेंट करनी है, उसी मैनर में मुझे वो ऑब्जर्वेशन आगे लेकर जानी है। ठीक है, ये हमारी खुद की ग्रूमिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा किसी को रिपोर्ट नहीं करते रहेंगे। ठीक है, एट सम टाइम, आफ्टर सम टाइम we also to face the management, we also to be in that TL role or in that management role। तो वो रोल सडनली नहीं आएगा, वो आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ये माइंडसेट हमें बिल्कुल चेंज कर देना है कि भैया मेरा काम तो ऑब्जर्वेशन लाना है, मुझे रिपोर्ट से मतलब नहीं है, क्या रिपोर्ट जा रही है, कैसे रिपोर्ट जा रही है। नहीं, ये हमारी पूरी ऑनरशिप है कि रिपोर्ट में क्या लिखा जा रहा है, रिपोर्ट मुझे लिख के देनी है, उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो क्यों चेंज हो रहा है, वो सब हमें ही देखना है। क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, आपको पता है, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो भी आपके ऑडिट क्वेरीज हैं वो आपको पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिस्कशंस करके उसको क्लोज करना है, फाइनलाइज करके देना है। इट्स नॉट लाइक कि कई लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन इकट्ठा करते रहेंगे, लास्ट जिस दिन अब फाइनल क्लोजर मीटिंग है, साइट की मीटिंग है, तब आप सारी ऑब्जर्वेशन लेके बैठते हो। ऐसा करके कुछ भी नहीं होगा, आप अपना ही टाइम साइट पे और वेस्ट करोगे, क्योंकि कभी भी कोई भी क्लाइंट आपके ऑब्जर्वेशंस को आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, वो हमेशा अपना उसके अंदर इनपुट देगा एंड हमेशा अपने आप को सेफर साइड लेकर जाएगा एंड ट्राई टू प्रूव योर ऑब्जर्वेशन रॉन्ग। तो वो चीज़ बचने के लिए, अगर जैसे जो मैंने बताया कि हम अगर शुरू में ही उसको डिस्कस करके और मेल पर क्लोजर कर लेंगे उसका, तो वो आपका जो अगेन जो साइट पर एक्सेस टाइम लगने वाला है, जो आपका ओवर टाइम लगने वाला है, जो हमारा साइट पे ऑडिट पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपको बैठना पड़ जाए, वो सब चीज़ों से आपको सेव करता है आपका ये डिस्कशन, स्ट्रक्चर डिस्कशन। उसके बाद ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन होता है उस चीज़ को हमें डॉक्यूमेंट करके रखना है। ठीक है, मोस्टली ये टेक्निकल टीम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि कोई साइट इंचार्ज कुछ भी बोल देता है हमें, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं, वो तो चीज़ थी ही नहीं। या हमें फॉर एग्जांपल हमें कोई GFC मिलती है, हम GFC लेके काम करने लगते हैं, पता चलता है कि वो तो पुराना वर्जन था, उसके बाद दूसरी GFC आ चुकी थी, वर्जन चेंज हो गए। मतलब बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सब से अल्टीमेटली क्या होगा, देखो ये ठीक है, बाद में हम कहेंगे नहीं जी आपने गलत डाटा दिया था, ठीक है दिया था। फाइनली मैनेजमेंट क्या बोलेगा, हमारा भी एंड उनका भी यही बोलेगा ना कि चलो भाई अब सही डाटा लेके बताओ तो सही, आना क्या है, करेक्ट है क्या। तो उसमें क्या आपको ही दोबारा दिमाग लगाना पड़ा, आपको ही दोबारा टाइम ख़राब करना पड़ा, एंड ओवरऑल कंपनी का लॉस हुआ क्योंकि ओवर रन हो गया। जो प्रोजेक्ट नंबर 3 को 10 दिन में कंप्लीट करना था, अब उसमें 20 दिन लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली लॉस किसका है, नंबर 3 का ही लॉस है, किसी का भी लॉस नहीं है। क्लाइंट डबल पेमेंट तो देगा नहीं उस चीज़ के लिए हमें। तो इसलिए वो चीज़ अवॉइड करने के लिए सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना एंड ईमेल पर ट्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मल क्लोजर कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको अगेन बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी इशूज़ हैं, आपने कुछ चेक किया, कुछ नहीं मिला है, कुछ मिला है, जो भी है उसको ईमेल पर क्लोज करना है। ईमेल के बगैर कोई कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। कई बार चीज़ें होंगी आप ईमेल पे नहीं ले सकते, उन्होंने आपको कोई हार्ड कॉपी दी है, पुट इट ऑन मेल कि सर यू हैव प्रोवाइडेड मी दिस डॉक्यूमेंट, वर्जन दिस, डेटेड दिस, आई एम कंसीडरिंग दिस डॉक्यूमेंट फॉर माई रिकन्सिलेशन पर्पज या बिलिंग चेकिंग पर्पज या एनीथिंग। तो उस चीज़ से एक वो आप ना अपने आप को सेफ गार्ड करते हुए चलते हो। एंड बीइंग एन ऑडिटर, ये तो हमारी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने आप को सबसे पहले सिक्योर करके चलना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपने ऑडिटी के लिए कुछ आउटपुट या कुछ एडिशन दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है।
तो हमेशा देखो ये आप लोग प्लीज़, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि commercial and technical teams are no two departments working there at site, but we are only a single team working there. ठीक है, जॉइंट अप्रोच है, जॉइंट कोलेब्रेशन है हमारा, जिससे हम क्लाइंट को एक टेक्नो कॉमर्शियल एस्पेक्ट में आउटपुट दे पाएँ. सो टेक्नो कॉमर्शियल जोड़ा ही इसके लिए क्योंकि उसमें टेक्निकल एंड कॉमर्शियल टीम दोनों को जॉइंटली काम करना पड़ेगा. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि हम दो डिपार्टमेंट में बट गए हैं. कॉमर्शियल डिपार्टमेंट एक हो गया, टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया. तो डिपार्टमेंट वाइज चलेंगे तो बॉस हम डिलीवरी नहीं दे पाएंगे एंड अल्टीमेटली उसका रिजल्ट पता है क्या होगा. एज अ नंबर ट्री अगर मैं बात करूँ तो वो रिपोर्ट पे उसका फ़र्क दिखेगा, वो रिपोर्ट पे उसका फिर रीवर्क दिखेगा, वो साइट पे उसका डिले दिखेगा हमें. तो वो सब चीज़ हमें रिमूव करनी है. ठीक है, वर्क एज अ टीम ओनली, नॉट एज अ डिपार्टमेंट. अब हम लोग बात करते हैं, देखो डाटा मैनेजमेंट टेक्निक्स. इसमें हमने ऑलरेडी कवर किया था अपने प्रीवियसली कुछ सेशन में, जहाँ पर वी कंसीडर्ड एसोसिएट्स लेवल ऑफ टीम ओनली. तो टुडे वी आर टेकिंग अप टू द टेक्निकल टीम मेंबर्स आल्सो. तो हमेशा जो आपका सिस्टम है, आपका डेस्कटॉप है, उसमें बहुत उसको हमें क्लीन रखना है, डाटा को बहुत एप्रोप्रिएटली स्टोर करके रखना है. ठीक है, अननेसेसरी डाटा का कलेक्शन वहाँ पे नहीं रखना है. किस तरीके से फोल्डर मैनेजमेंट होगा, किस तरीके से फाइल का नेम होगा, वो सब स्ट्रीमलाइन होना चाहिए. उसमें हमें अपनी डिस्कवरी नहीं डालनी है कि भैया अगर क्लाइंट का आरएबिल स्टोर करना है तो मेरा अलग तरीका है क्लाइंट का आरएबिल का फोल्डर को बनाने का, सब कॉन्ट्रैक्टर के बिल्स को सेव करने का मेरा एक अलग तरीका है. उस फोल्डर का नाम मैं अपने हिसाब से रखूँगा और कोई अपने हिसाब से रख लेगा. नो, दैट हैज़ टू बी स्ट्रीमलाइन, दैट हैज़ टू बी सेम अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. वो प्रैक्टिस हम लोग डेवलप कर रहे हैं. सो ऑलरेडी उसके ऊपर हम लोग इस पूरा सेशन हमने खाली डाटा मैनेजमेंट के ऊपर रखा था. सो अगेन उसका एक पार्ट खाली आप लोगों के लिए हमने यहाँ इंक्लूड किया है, जिससे कि सब लोगों के अंदर जो प्रोसेस है वो सेम रह सके. जो अब एक तो हमें हमारा डेस्कटॉप क्लीन रहना चाहिए, डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल नहीं रहनी चाहिए, दैट वी ऑल हैव टू मेक श्योर. ठीक है, दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा डाउनलोड्स का फोल्डर है, डाउनलोड्स के फोल्डर में कुछ भी नहीं होना चाहिए. हम मेल से चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं, वो डाउनलोड में ही पड़ी हैं, जिप फाइल डाउनलोड में ही पड़ी हैं. वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके उस फाइल को कॉपी करके हमने कहीं और भी सेव कर लिया, बट वो डाउनलोड में भी पड़ी है. नो, डाउनलोड जस्ट कि आपने वो डाटा आपको मिल गया, डाउनलोड में आ गया, इमिजिएटली उसको डाटा को कहाँ पर प्लेस करना है, कहाँ पर उसको शिफ्ट करना है, उसी मोमेंट आपको करना है. तो डाउनलोड सेक्शन में किसी के भी कुछ भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, हाँ आपके टुडे आज के डाउनलोड्स उसमें हो सकते हैं जो आप शायद आप शाम को अरेंज करेंगे एंड रिस्पेक्टिव फोल्डर में ट्रांसफ़र करेंगे. उसके अलावा डाउनलोड सेक्शन एंड डेस्कटॉप सेक्शन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. हमें उस हिसाब से अपना डाटा मेंटेन करना है, जिससे कि हैंड ओवर में हमें कभी कोई चैलेंज ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, आप सोचो कि अगर आपको किसी से हैंड ओवर लेना है या आपको किसी को हैंड ओवर देना है, तो अगर सबका अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन सबका डाटा स्टोर करने का जो मेथड है वो सेम होगा, सबको पता होगा कि हमारे सिस्टम में एक क्लाइंट के नाम से फोल्डर आता है, क्लाइंट के नाम के बाद सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग का फोल्डर होगा, क्लाइंट बिलिंग का फोल्डर होगा, स्टोर्स का फोल्डर होगा, मतलब एक सबको सिस्टम पता है, सबका सिस्टम सेम होगा. तो सोचो कि डाटा देने में और लेने में कितना आसान रहेगा. आपको एक एक फोल्डर खोल के किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर ये मिल जाएगा या इसके अंदर ये वाला डाटा मिल जाएगा, रिकन्सिलेशन यहाँ पे मिलेंगे, रिपोर्ट्स यहाँ पे मिलेंगी. वो नहीं करना है हमने. ठीक है, तो वो फ्लो चार्ट क्या रहने वाला है अभी आगे स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे. बट ये प्रैक्टिस के साथ माइंड सेट अब हमें अपना ओपन करके रखना पड़ेगा. किसी का इंडिविजुअल इनपुट यहाँ पे नहीं चलेगा कि भाई मैं तो इस हिसाब से डाटा मैनेज करता हूँ, ये मेरे लिए ठीक है. नो, इट्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव डेवलप अ फ्लो चार्ट, वी हैव डेवलप सम सिस्टम, वी नीड टू फॉलो द सेम. अवॉइड सी ड्राइव स्टोरेज. सी ड्राइव का स्टोरेज हम सबको अवॉइड करना है. आप सबको पता ही है क्यों, क्योंकि अगर सिस्टम में कभी भी कोई क्रैश होता है सिस्टम या कुछ भी आपको विंडोज़ रिस्टोर करने का अगर ज़रूरत पड़ती है, तो आपका सी ड्राइव का जो डाटा होता है वो सारा रिमूव हो जाता है, इरेज हो जाता है. सो फॉर दैट रीज़न वी नीड टू स्टोर द डाटा, वी नीड टू अवॉइड स्टोरिंग डाटा इन सी ड्राइव. उसके अलावा आप डी ड्राइव ई ड्राइव जो है वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. सो हमने अभी 4 चीज़ें यहाँ डिस्कस कर ली हैं कि डेस्कटॉप पे कुछ नहीं होना है, डाउनलोड सेक्शन में कुछ नहीं होना है, डाटा का स्ट्रक्चर एकदम इस हिसाब से होना है कि हैंड ओवर करने में इशू ना हो, एंड सी ड्राइव में कुछ नहीं होना है. नाउ नेक्स्ट, यूज डिस्क्रिप्टिव नेमिंग कन्वेंशंस. ठीक है, तो अब नेमिंग कन्वेंशन में देखो क्या है,
हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं डी ड्राइव में, उसको क्लिक करके अंदर देखेंगे फिर एक न्यू फोल्डर होगा, फिर हम क्लिक करके देखेंगे फिर कुछ न्यू फोल्डर होगा या किसी नाम से फोल्डर होगा। ये प्रैक्टिस हम लोगों को अवॉइड करनी है, डुप्लीकेट फोल्डर नेम्स की प्रैक्टिस को अवॉइड करना है। सूटेबल नेम होना चाहिए हर फाइल का, हर फोल्डर का। अगेन इसके ऊपर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे कि क्या नाम होना चाहिए, वो भी हम आपको मेंशन करके देंगे कि किस नाम से कौन सा फोल्डर होना चाहिए, एंड वही सबको फॉलो करना है विदाउट एनी फेलियर। परमानेंटली डिलीट अननेसेसरी फाइल्स, ठीक है, जो भी फाइल्स अननेसेसरी हैं, आपने डाउनलोड किया, जिप फाइल डाउनलोड करी, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो एक्सट्रैक्ट का डाटा आपने ले लिया, वो जिप फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको परमानेंटली डिलीट करो। आप नॉर्मल डिलीट करते हो तो वो साइकिल बिन में जाके अगेन स्टोर हो जाता है, वो 30 दिन लेता है क्लियर होने के लिए। उसको परमानेंट डिलीट करने के लिए आप शिफ्ट डिलीट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, जिससे वो फाइल इंस्टेंटली वहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है, और आपकी जो स्टोरेज है वो फ्री हो जाएगी। प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर गाइडलाइंस, तो अब हम अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप का काम है हमारे पास, जिसमें हम बात करते हैं रोड प्रोजेक्ट्स की। अगर हम बात करें तो वहाँ पर हाईवे का हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, या अदर कोई कैटेगरी हो गई। बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो वहाँ पर जैसे एमईपी का काम हो गया, पाइलिंग वर्क हो गया, अर्थ वर्क हो गया, ठीक है, पीआरडब्ल्यू हो गया, या और स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स हो गए। तो उनके अकॉर्डिंगली हमें अपने फोल्डर को मैनेज करना है। हमारे फोल्डर हर तरीके से मैनेज होने चाहिए, लाइक ऑनगोइंग ऑडिट है तो उसमें किस हिसाब से मैनेज करना है, वन टाइम ऑडिट है तो उसमें किस हिसाब से मैनेज करना है, वो सब चीज़ें हम अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये अब आपको देखना है आपके ड्राइव में हर जो भी डी ड्राइव होगी वहाँ पर सबसे पहले आपका नाम का एक मेन फोल्डर होगा, योर नेम, ठीक है, जो भी नाम है आपका नाम से एक फ़ोल्डर आपने बनाया, सिंगल फोल्डर, उस डी ड्राइव में इस नाम के अलावा दूसरा फोल्डर नहीं होगा। तो कभी भी आपका सिस्टम किसी और पर्सन के पास अगर जा रहा है या आपको अपना सारा डाटा किसी को हैंड ओवर करना है, तो सिंपली आपको ये अपने नाम वाला फोल्डर कॉपी करके किसी को दे देना है, जिसके अंदर आपके सारे क्लाइंट एंड आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वहाँ पर आ जाएंगे। तो आपने अपने नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है, उस फोल्डर के अंदर में 2 फोल्डर आपके रहेंगे, एक फोल्डर का नाम रहेगा क्लाइंट, दूसरे फोल्डर का नाम रहेगा अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। क्लाइंट वाला जो फोल्डर आप बनाएंगे उसके अंदर फिर क्लाइंट 1 क्लाइंट 2, तो क्लाइंट 1 इज द नेम ऑफ योर क्लाइंट नाउ, ठीक है, अपना नाम बनाया एबीसी, एबीसी के अंडर में आपने लिखा क्लाइंट, फोल्डर का नाम ही क्लाइंट रहेगा। क्लाइंट के फोल्डर के अंदर अब आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप टाटा के लिए काम कर रहे हैं तो एक फोल्डर टाटा का बनाया, शाहपुर जी के लिए काम कर रहे हैं तो एक फोल्डर शाहपुर जी का बनाया, और तीसरे किसी के लिए काम कर रहे हैं तो तीसरा फोल्डर, यानी जितने क्लाइंट्स के लिए आप काम कर रहे हैं उतने क्लाइंट्स वाइज आपके फोल्डर बनते रहेंगे क्लाइंट के फोल्डर में। अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आपके रिम्बर्समेंट्स हो गई या अदर्स आई मीन टू से आपके कोई चेकलिस्ट है या कोई ऑडिट की पीपीटी है या कुछ आपका ऐसा कुछ लर्निंग मटेरियल है, वो आप अदर्स वाले फोल्डर में रख सकते हो। अब जो क्लाइंट का आपने फोल्डर बनाया, आप लेट सपोज एक ही क्लाइंट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप काम कर रहे हो, तो उस क्लाइंट के फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट 1 यानी पैकेज 1 अगर है किसी का, या अलग बिल्डिंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, मान लीजिए कलपत्रू का आप काम कर रहे हैं तो कलपत्रू का पुणे का कोई प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट 1 आ गया, कोई बेंगलोर का प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट 2 आ गया। तो इस हिसाब से आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट वहाँ पर डेवलप करने हैं। नाउ अब आपका अगर मंथली ऑडिट है तो फर्स्ट मंथ ऑडिट है ना, तो फर्स्ट ऑडिट यानी उसमें मंथ और ईयर आपको मेंशन करना है। लेट सपोज आप अप्रैल में काम करने गए हैं तो इट्स अप्रैल 2025, फिर जून में जाएंगे तो जून 2025, सितंबर में जाएंगे तो सितंबर 2025। तो कौन से मंथ का आपका काम है वो, इट्स नॉट अबाउट द पीरियड जो हम चेक कर रहे हैं, हो सकता है हम अप्रैल 2025 में जाके 2024 का ऑडिट चेक कर रहे होंगे, बट हम कौन से महीने में जाके ऑडिट कर रहे हैं वो वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। इसके बाद अब जब फर्स्ट मंथ, ये आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर रहना चाहिए। ये स्लाइड मैं सबको शेयर करूँगा अभी आफ्टर दिस सेशन, आई विल शेयर दिस पीपीटी ओवर ईमेल, सो दैट के ये जो फ्लो चार्ट है वो आप लोग इसी हिसाब से मैनेज एंड मेंटेन करेंगे। तो जब फर्स्ट मंथ का ऑडिट मैंने डाला, अब उसके अंदर हमें देखना है, अब देखो ये मेन चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, एक तो रिपोर्टिंग एंड वर्क स्कोप आपका, एक रिपोर्टिंग और वर्क स्कोप आपका होना चाहिए, दूसरा जो डाटा आपको क्लाइंट से मिलता है उसका फोल्डर होना चाहिए, तीसरा आपकी वर्किंग्स हो गई है ना, जो हम डिटेल्ड वर्किंग बहुत सारी करते हैं बट वो कन्वर्ट नहीं होती रिपोर्टिंग में, है ना, या अनेक्शर्स नहीं बनते हमारी, बट वर्किंग है तो वहाँ पर होनी चाहिए।
रिपोर्टिंग एंड वर्क स्कोप में आपका रिपोर्टिंग एनेक्शंस एंड वर्क स्कोप जो हमें कवर करना है वो होगा। डाटा फ्रॉम क्लाइंट बिलिंग में देखिए हमारा क्या क्या डाटा होता है। क्लाइंट बिलिंग का एक मेन डाटा होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग का एक मेन डाटा होता है, और हमारे जो सैप के रिकॉर्ड्स होते हैं वो हो गए, और उसके अलावा अदर्स अगर कोई पीएनएम है, स्टोर्स है, तो अकॉर्डिंगली आप उनके फोल्डर बना सकते हो डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है। क्लाइंट बिल में हमारे सर्टिफाइड बिल्स होते हैं, सबमिटेड बिल्स होते हैं, और कोई अदर कम्युनिकेशन अगर क्लाइंट से हम लोगों ने ली है तो वो डाटा हो गया। फॉर एग्जांपल, और सेम ऐसे ही सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग में अलग अलग कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे हमारे। अगर पीआरडब्ल्यू है, बैक टू बैक है, विद मटेरियल है, एमईपी कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैटेगरी बना के रखेंगे उनकी। अगेन सर्टिफाइड बिल्स का एक्सेल पीडीएफ आपका हो गया। सब कॉन्ट्रैक्टर बिल्स में भी फिर सब कॉन्ट्रैक्टर नेम वाइज आपका फोल्डर हो जाएगा। फिर हर सब कॉन्ट्रैक्टर के फोल्डर में उसका वर्क ऑर्डर और आर बिल्स होने चाहिए। अब देखो इसमें कई लोग क्या करते हैं ना, वर्क ऑर्डर का अलग ही फोल्डर बना के रख लेंगे पूरा। अब मान लो मुझे एक सब कॉन्ट्रैक्टर का चेक करना है, अब मुझे उसका वर्क ऑर्डर देखना है, तो मैं पहले दूसरा फोल्डर जाके ओपन करूँगा। अब मुझे उसके बिल्स देखने हैं, उसके डाटा देखना है, तो मैं वापस दूसरे फोल्डर में आके चेक करूँगा। सो इट्स बेटर कि हम सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज फोल्डर बनाएं। समटाइम इट हैज़ हैपेंड कि क्लाइंट क्या करता है ना कि वो पूरा वर्क ऑर्डर का उसका सेपरेट फोल्डर बना होता है, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक एक वर्क ऑर्डर आप रिस्पेक्टिव सब कॉन्ट्रैक्टर के उसमें जाके करो, बट वो सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग के अंदर फिर सब कॉन्ट्रैक्टर वर्क ऑर्डर का एक सेपरेट वर्क ऑर्डर आप सेपरेट फोल्डर आप बना के रख सकते हो, बट इट हैज़ टू बी अंडर द सब कॉन्ट्रैक्टर और बिलिंग फोल्डर ओनली। तो वर्क ऑर्डर हो गया। आर ए बिल में अगेन आपका एक्सेल एंड पीडीएफ। एक्सेल एंड पीडीएफ दोनों लेना इसलिए ज़रूरी है, खाली एक्सेल लेके काम करेंगे तो हमें पता नहीं होगा कि सर्टिफाइड क्या हुआ था। कई बार क्लाइंट हमें बोल के दे देता है ये सर्टिफाइड बिल था जी। अरे जब तक साइंड कॉपी नहीं मिलेगी मैं कैसे मान लूँ ये बिल सर्टिफाइड है मेरा। तो पीडीएफ से मुझे ये श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ ये सर्टिफाइड लेटेस्ट बिल है। उस पीडीएफ को मैं एक्सेल के साथ मैच करूँगा और फिर उस एक्सेल के ऊपर काम करूँगा। कई बार आप एक्सेल लेके पूरा काम कंप्लीट कर दे तो बाद में पता चलता है सर इसमें तो अमेंडमेंट था, अब सारी वर्किंग बेकार हो गई मेरी। तो ठीक है, वो चीज़ अवॉइड करनी है। तो दोनों, इसलिए दोनों कॉपी हमेशा हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे ना, वेरिएंसेस दिखाएंगे, तो बोलेंगे सर्टिफाइड बिल दिखाओ इसका कौन सा था। तो मैंने वर्किंग पूरी एक्सेल से कर रखी होगी, सर्टिफाइड पीडीएफ मेरे पास होगा ही नहीं, तो वो मेरी सारी वर्किंग बेकार है। तो इसलिए हमें पहले से मेंटेन करके रखनी है अपने पास। ठीक है। कैटेगरी की जैसे हम बात कर रहे थे, तो कैटेगरी आपके हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, स्ट्रक्चर के हैं या अदर हैं, जो भी हैं जिस टाइप के भी हैं, वो सब हमें इंक्लूड करके वहाँ पर रखना है। तो ठीक है, तो आज का सेशन हमारे यहाँ तक था। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, एक बार ये जो पहले अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो वो हम लेंगे, उसके बाद वी विल ट्राई टू गेट एक्सेस टू योर सिस्टम्स एंड विल चेक कि अभी आप कैसे डाटा मैनेज कर रहे हैं, अभी फोल्डर मैनेजमेंट आपका किस तरीके से है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कंसर्न है तो आप लोग रेज कर सकते हैं अभी। किसी को कॉमर्शियल टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करने में कोई कंसर्न या कोई इशू आता है तो प्लीज़ लेट मी नो। कोई स्पेसिफिक किसी का कंसर्न है या कुछ इशू है तो। परफेक्ट। तो अब हम सिस्टम एक्सेस एक बार लेंगे, रैंडमली हम कुछ लोगों को चेक करेंगे यहाँ पे सिस्टम, एंड चेक करेंगे डाटा उनका कैसे मैनेज है, फाइल कैसे मैनेज है, और कुछ रिपोर्ट अगर उन्होंने अभी तक बनाई है तो वो क्या है। तो मैं जिस पर्सन का नाम लूँगा वो एक बार अपना स्क्रीन शेयर करके एक बार सिस्टम का एक्सेस दिखाएंगे हमें। दर्शन। मिस्टर दर्शन। हाँ हेलो सर। हाँ जी हेलो। एक बार आप स्क्रीन शेयर करेंगे अपने सिस्टम की। यस सर यस। प्लीज गो। हाँ जी परफेक्ट। तो एक बार आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। परफेक्ट ठीक है। तो ये अभी मैनेज किया आपने या पहले से मैनेज है? पहले भी था सर, आज भी किया। परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। डी ड्राइव में जाइए, दर्शन। तो एक बार सब लोग देखें कि जो हमने बात करी है तो वो किस हिसाब से अभी मेंटेन हो रहा है। तो एक दर्शन के नाम से फोल्डर है इनका डी ड्राइव में, उसके अंदर GOBP क्या है। वन ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसमें इसमें हमें एक चीज़ रखनी है ना, इस आपके दर्शन के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर आपको होना चाहिए क्लाइंट्स।
ठीक है। और उस क्लाइंट के फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए। जैसे अभी आपका जो कुछ पर्सनल है ये आपका अदर में हो जाना चाहिए, ठीक है। जिससे जब आपको अपना डाटा किसी को हैंड ओवर करना पड़े तो सीधा क्लाइंट वाला फोल्डर आप उठा के दे दोगे, दूसरा आपको कुछ देना ही नहीं है। या ठीक है, क्लाइंट के अंदर फिर जियो बीपी आ गया, सीमेक आ गया, वी एन सी एल पी आ गया। तो सीमेक एक बार खोलेंगे। सी मैक में सर ज्यादा वर्क नहीं था, तो मैं आपको करंटली प्रोजेक्ट करंट वाला बताता दिखा हूँ। दो। फाइल एम एल सी, अच्छा ये अब एक क्लाइंट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं ये, है ना। यस यस प्लीज। एम एल सी पी हो गया, एफ टी डी को हो गया, स्केला एम एन आई डी, डी जी एन पी, प्रीवियस रिपोर्ट, प्रोजेक्ट डिटेल। परफेक्ट। अभी प्रेजेंटली कौन सा चल रहा है? प्रोजेक्ट 1। एम एल सी पी। ठीक है, खोलिए इसको। एग्रीमेंट, आर ए बिल, ड्राइंग्स, अप्रूव्ड पी ओ क्यू, ऑडिट, वर्किंग। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड आपको करना है, और इसमें है ना, इसमें हमारे क्लाइंट आर ए बिल हो गए, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर आर ए बिल हो गए, और यस यस। फिर अदर है ना एक, और आपका रिपोर्ट एंड वर्क स्कोप हो गया। तो इसका वर्क स्कोप कहाँ पर है? अगर इस प्रोजेक्ट का वर्क स्कोप की हम बात करें कि आपको करना क्या है, वो कहाँ है? सर वर्क स्कोप जो है वो सारा पूरा प्रोजेक्ट डिटेल्स फाइंडिंग्स क्या रहेगी। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो है सर थोड़ा डिफरेंट वर्किंग पे चल रहा है। तो ये जो यार प्रोजेक्ट डिटेल्स है आपका, ये इन सारे प्रोजेक्ट के लिए वर्क स्कोप है क्या ये? हाँ हाँ यस। इसमें क्या है ना कि जो ये कंपनी है सर, ये डेटा बिल्कुल भी सही से मतलब मेंटेन नहीं रख पा रही है। तो सारा इनका हार्ड कॉपीज में है, इनवर्ड रजिस्टर्स नहीं है, कुछ अभी तक कोई आपने कंजम्पशन। कुछ कोई कोई पॉइंट ड्राफ्ट किया है अभी तक, कोई रिपोर्ट, एनीथिंग? यस यस यस, ऑडिट वर्किंग्स में आप देख सकते हाँ, हैं। दिखाइए। ये ऑडिट सो दीज वर्किंग्स ऑल है। आर एक्सेल्स ओनली। हाँ, उसमें उसी में मैंने पॉइंट नोट किए हैं। दिखाइए सो एक बार ऑन खोलिए। द 10th ऑफ हम लोग बैठे इसमें रिपोर्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस। जैसे कि रिकंसिलिएशन का रिलेशन बनाया है, और अच्छा अच्छा। रिकंसिलिएशन ऐसे पॉइंट्स मैंने फिलहाल ड्राफ्ट रखे हैं। ओके, सीम्स गुड। बट ये आपके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स किस फॉर्म में जानी है? मतलब वो पीपीटी में जानी है या वर्ड में जानी Yes, है? yes, it will go on PPT only, but currently not working on drafting the report. Currently ओके working ओके, on preparing the. ऑलराइट ऑलराइट, ओके, सीम्स गुड। मतलब वो ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेबल है एंड चीज़ें मैंशनड हैं, सो इट्स Yes. गुड। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, थैंक Okay. यू दर्शन। अब हम सिस्टम देखते हैं एक बार। प्रशांत, प्रशांत एक बार आप सिस्टम का एक्सेस दिखाएंगे? Hello. हाँ जी प्रशांत, एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए सिस्टम की। हाँ जी, एक बार डाउनलोड सेक्शन दिखा दीजिए। ओके ओके, अभी एम्प्टी किया है ये? हाँ सर कुछ था वैसे ही लेकिन ठीक है, मतलब कुछ काम का तो नहीं उड़ा दिया ना उस चक्कर में? कुछ काम की फाइल तो डिलीट नहीं कर दी ना उस चक्कर में? हाँ सर। कोई काम की फाइल डिलीट तो नहीं कर दी ना उस चक्कर में? क्लियर कट नहीं तो नहीं 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 करवाना? नहीं नहीं सर, वो ड्राइंग्स थे और डाउनलोड करके रखी थी पहले से ही। परफेक्ट। तो डी डी ड्राइव में आइए एक बार। आपका नाम है सूरज कुमार, क्या है? सर हमारे मैनेजर हैं, उनके मतलब पहले उनका सिस्टम था तो इसमें डाटा था पहले हाँ से। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है ठीक है, अपना फोल्डर खोलिए। हाँ जी। फिर मेरा इसमें जो मैंने पहले किया था सिस्टम से वो डाटा मैंने डाला सप्लाई था अभी। डाटा बिल, सी ए डी, डाटा, डाटा वन। नहीं तो इस हिसाब से ये नहीं होना है ना ये? इसमें है क्लाइंट में जैसे ये करके रखा है अंदर। ठीक है, तो और जैसे इसको ना यूजर एक में क्लाइंट काम। का फोल्डर जैसे आपने बनाया है, ऐसे ही एक आप अलग एक अदर्स का फोल्डर बना दीजिए, जिसमें बाकी सब जो आपका दिख रहा है क्लाइंट के अलग, वो सब उसमें चला हाँ जाए, जी। है ना। हाँ जी सर। फिर ये डाटा फ्रॉम क्लाइंट, रिपोर्टिंग एंड वर्क स्कोप खोलिए। सर इसमें अभी कुछ नहीं है सर अभी।
वर्किंग्स खोलिए। तो So, वर्क स्कोप तो होना चाहिए ना इसमें, वर्क स्कोप क्यों नहीं है? रिपोर्टिंग एंड वर्क स्कोप में वर्क स्कोप तो होना ही चाहिए। हाँ जी सर। तो वो क्यों नहीं है आपके? वर्क स्कोप नहीं है आपके पास? अभी कौन से क्लाइंट पे काम कर रहे हैं आप? जय कुमार सर। तो जय कुमार का वर्क सर मैं, स्कोप क्या है? हाँ सर, मेरे सीनियर जो मैनेजर है सर, उनसे मैं लेता हूँ, वैसे मेरे को देते रहता है डाटा, उसका उसमें करता रहता हूँ सर। बट हु इज़ योर सीनियर मैनेजर? तो उसमें होता है। सुनील हेलो। कुमार। सुनील इज अवेलेबल इन दिस मीटिंग? यस सर, यस सर। तो सुनील, इनके पास व्हाई ही इज नॉट हैविंग द वर्क स्कोप ऑफ द क्लाइंट? नहीं सर, है सर, शेयर किया हुआ है, अभी उसने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा अच्छा, चलो वो अलग इशू है, कोई नहीं। तो देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, हर टीम मेंबर के पास कंप्लीट वर्क स्कोप होना ज़रूरी है, ठीक है? उनको पता होना चाहिए कि उस वहाँ पे क्या काम करना है। जो आपके टीम मैनेजर आपको काम देंगे वो तो ठीक है, वो तो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो वर्क स्कोप आपके पास भी रहना चाहिए और उसके अंदर अपडेट होना चाहिए आपका काम, ठीक है ना? तो प्रशांत, कुछ ड्राफ्ट किया आपने ऑब्जर्वेशन अभी तक? हाँ जी सर। कोई ऑब्जर्वेशन अभी तक आपने ड्राफ्ट की है? कुछ लिखा है? कोई ऑब्जर्वेशन निकली है अभी तक? सर निकाला था उसमें, पिछले वाले में है तो क्लियर हो गया था, तो कुछ मतलब प्रीवियस में एक इशू आया था। दिखाओ कैसा, क्या इशू था, कैसे लिखा था आपने? यस। देखो, अगर वो इशू था तो वो वर्किंग्स में ना होके वो आपका रिपोर्टिंग वाले फोल्डर में आना चाहिए था, नेक्स्टर्स बन के। दोनों चीज़ में ओके। डिफरेंस समझिए आप। वर्किंग तो हमारी वो है जो हमने काम किया है, बट हम उसमें कुछ हमें फाइंडिंग नहीं मिली है। अगर मुझे कोई फाइंडिंग उसमें मिल गई है, अगर इट्स अ पार्ट ऑफ माय ऑडिट रिपोर्ट, तो वो यहाँ से फोल्डर निकल कर कहाँ चले जाएगा? वर्किंग मेरी अनेक्स्चर बन जाएगी और वो मेरी रिपोर्टिंग एंड वर्क स्कोप वाले फोल्डर में चली जाएगी अनेक्स्चर के नाम से। ओके सर। तो इसमें बताओ, कोई ऑब्जेक्शन आपके कोई तो दिखाओ। इसमें सर मैं समझ गया। देखो, अब यहाँ यही इशू हमें ना ख़त्म करना है प्रशांत। जो आज की मीटिंग में आप समझे ना, हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि अगर आपकी अब ऑब्जर्वेशन है तो ये क्या है? वर्किंग है आपकी, है ना? मान लो मैं क्लाइंट साइड से मैं बैठा हूँ एंड मैं कॉमर्शियल टीम से हूँ, है ना? मुझे इंजीनियरिंग नहीं समझ आती। अब आपको मुझे ये ऑब्जर्वेशन समझानी है, तो वो कहीं लिख के दोगे ना वो ऑब्जर्वेशन मुझे, जैसे हम क्लाइंट को देते हैं रिपोर्टिंग फॉर्मेट में, है ना? तो जैसे अभी ये हमने जिनका सिस्टम चेक किया था, तो उन्होंने एटलीस्ट क्या है कि वो एक MOM टाइप का ड्राफ्ट किया हुआ है ना? पॉइंट वाइज चीज़ें लिखी हुई हैं कि पढ़ के समझ आ जाए। अब आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं वो पढ़ूँ और मुझे समझ आ जाए कि इशू क्या था, है ना? ऐसा नहीं है ना? तो वो ऐसा हमें होना है हमारे पास हमेशा, ठीक है? जब भी हम ऑब्जेक्ट, ठीक है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अप्रोप्रिएटली ड्राफ्ट कर लोगे, लेकिन ट्राई हमें करना है। जब तक हम ड्राफ्ट करना शुरू करेंगे ही नहीं तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, हाँ राइट? सर। देखो, आपका जो मैनेजर है वो तो कर ही लेंगे, वो तो कर ही रहे हैं। आप बोलोगे कि सर मैं वर्किंग दे के उनको, वर्किंग करके उनको दे देता हूँ, वो ड्राफ्ट कर लेते हैं, तो ठीक है, वो कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको क्या हमेशा इसी कैपेसिटी में काम करना है? आपको भी तो आगे जाना है ना कभी। तो हाँ जी सर। अपनी तरफ से इनपुट हमें करके देना है, उसको मैनेजर और अच्छे तरीके से लिख के आगे देंगे, ठीक है? वो मैनेजर का काम है कि उस चीज़ को और अच्छे तरीके से आपसे डिस्कस करके आगे प्रेजेंट करना। लेकिन ये चीज़ हमें एज अ इंजीनियर ये हमें सीखनी है और इम्प्लीमेंट करनी है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन हम खाली वर्किंग नहीं देंगे, हम लिख के देंगे कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। हाँ जी समझ सर। गए? हाँ जी सर। ठीक है प्रशांत, थैंक यू। आप एग्जिट कर लीजिए। एक बार अशफाक, आप एक बार सिस्टम का एक्सेस दीजिए। अशफाक।
अशफाक अहमद। यस सर। हाँ जी, एक बार प्लीज़ स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ जी, एक बार डाउनलोड फोल्डर। नहीं नहीं, ये नहीं, नीचे फोल्डर आइकन पर क्लिक कीजिए। हाँ, ये वाला डाउनलोड्स, डाउनलोड्स। हाँ जी, ठीक है, खाली आज का ही है। ऑल राइट, डी ड्राइव पे आइए। ये क्या है डॉलर वाली फाइल ऊपर? ये तो कुछ वायरस है क्या? $AV ASW, ये क्या है? सर कोई फोल्डर न्यू बनाता हूँ तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो कुछ वायरस है आपके सिस्टम में बॉस, एक बार चेक करवाना इसको। अशफाक खोलो, क्लाइंट GOBP एंड RBL। गुड। कौन से पे काम कर रहे हैं अभी? आरबीएल सर। खोलिए, अहमदाबाद, ठीक है। क्लाइंट बिल, सब कॉन्ट्रेक्टेबल, ड्राइंग्स, VPS। ठीक है, इसमें बट वो फोल्डर नहीं है आपका, रिपोर्ट एंड वर्क स्कोप वाला। सर्टिफाइड है ना? वर्क स्कोप नहीं है, मैं उसको गूगल ड्राइव में मैं मेंटेन कर रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। आपके प्रोजेक्ट का गूगल ड्राइव पे मेंटेन हो रहा है क्या? यस सर। ओके, वर्क स्कोप जो है उस डेली बेसिस पे उधर मैं अपडेट करता हूँ सही सर, है, कैसा इन्फॉर्मेशन। सही है, सही है। एंड रिपोर्ट? वर्किंग सर। हाँ, रिपोर्ट, रिपोर्ट। रिपोर्ट कौन लिख रहा है आपके प्रोजेक्ट की? रिपोर्ट कोई करता है क्या? यस सर। कौन कौन बनाता है रिपोर्ट? मैं क्या टीम लीडर सर। तो आप अभी आप कोई रिपोर्ट ड्राफ्ट करके नहीं देते ऑब्जर्वेशन अपनी? ऑब्जर्वेशन देता हूँ सर, उसके बाद मतलब रिपोर्ट करते हैं। वर्किंग आप दे देते हो, बाकी रिपोर्ट वो बनाते हैं, है ना? जी सर, उसको टेबल फॉर्मेट में ऐसे से रिप्रेजेंट करके दे देते हैं। टेबल फॉर्मेट में आप ही दे रहे हैं। और रिपोर्ट किस फॉर्मेट में जा रही है, PPT में या वर्ड में? पीपीटी में सर। PPT में जा रही है। तो अब आगे से वो PPT आप उनसे बैंक से लेंगे और अपना जो जी ऑब्जर्वेशन रहेगी उसको अपने लेवल पे जितना भी आप ड्राफ्ट कर सकते हैं वो ड्राफ्ट करके उनको देंगे स्लाइड, है ना? ठीक है सर। ठीक है, यही इम्प्रूवमेंट हम देखो आज वाली ट्रेनिंग से ये इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। एंड ये फीडबैक मुझे आ जाना चाहिए सभी कॉमर्शियल टीम या टीम लीडर से कि अब टेक्निकल टीम अपने जो पॉइंट्स हैं वो जो भी, चाहे PPT में रिपोर्ट जाती है चाहे वर्ड में जाती है, उस फॉर्मेट में अपनी तरफ से ड्राफ्ट करके देते हैं। वो ड्राफ्टिंग सही है नहीं है उसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे, डेट्स अ सेकंड लेवल। जब हम उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे और उस चीज़ के लिए हम ट्रेनिंग भी देंगे आपको, वो सेकंड लेवल है। पहला लेवल तो ये है कि वो आप इम्प्लीमेंट करो तो सही, लाओ तो सही अपने वर्किंग्स में, ठीक है? तो ठीक है सर। वो हमारी ही ड्यूटी है, उसके लिए किसी और पर्सन को हमें अलग से अपॉइंट नहीं किया है। हर किसी को अपने पॉइंट ड्राफ्ट करके देने हैं। TL की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पॉइंट्स को वो रिफाइन करे, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड करे और फिर आगे फॉरवर्ड कर दे, ठीक है? और जो भी पॉइंट आप क्लोज करेंगे, जो भी डिस्कशन क्लोज करेंगे, वो साइड पर्सन के साथ ईमेल पे आपको क्लोज करके रखना ही रखना है, उसमें कोई सेकंड थॉट है नहीं। क्लियर है ये चीज़ें? ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। इसके बाद हम देख लेते हैं सूरज। सूरज एक बार सिस्टम एक्सेस दीजिए अपना, स्क्रीन शेयर। सूरज, सर थोड़ा टॉयलेट गए थे। टॉयलेट गया है? हाँ जी। आप कौन? प्रशांत। प्रशांत, हाँ जी। ओके। मिराज, हाँ जी, एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए।
बीता दृष्टि क्वांटिटी और हेलो अप टू एमडी देगा ठीक है मेरा स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा हर्ष शेयर नहीं हो रहा है शेयर मुझे नहीं लगता हो गया डाउनलोड सेक्शन अगर कोई उधर नहीं होता है कोई इधर लास्ट मंथ टाइम ठीक है कुछ सॉफ्टवेयर ही हैं ऑलराइट डी ड्राइव ठीक है प्रीतम अभी तो डी क्यू एम टी आपका कहाँ पे वर्किंग है डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे किया था बॉस अभी अभी के अभी इसको कट करो और डी ड्राइव में पेस्ट करो राइट नाउ अपने नाम से फोल्डर बनाइए हाँ डेस्कटॉप पे रखना तो बहुत रिस्की है बॉस ठीक है पूरी वर्किंग उड़ जाएगी आपकी पता भी नहीं चलेगा आपको क्योंकि इतना डाटा हम लेते हैं ना क्लाइंट्स वगैरह से कहीं से भी कुछ भी वायरस कोई आ गया कुछ भी सिस्टम क्रैश किया सब खत्म क्या ही लगाना मेरे पास लेके डाउन देख तो मुझे भेजो भाई तो फिर आया खाना घर की बात करें दूसरे ठीक है सेटिंग वर्किंग में प्रोजेक्ट्स आ गए क्लाइंट आ गया हब डाउन इज द नेम ऑफ क्लाइंट प्रोजेक्ट है सब कौन से क्लाइंट का क्लाइंट नेम नहीं पता मुझे पर ओहो Uptown में- यार तो बताओ ये क्या बात हुई क्लाइंट नेम तो सबसे पहले पता होना चाहिए चलो ओपन करो इस पे अभी किस पे काम कर रहे हो अपटाउन सर तो हब टाउन पे काम कर रहे हो आपको नहीं पता किसका प्रोजेक्ट है ये कौन सा क्लाइंट है एक्चुअली आउटसोर्स कर रहे थे इसको अच्छा इसमें आपने बीओक्यू ड्राइंग अदर अभी अंदर तो कुछ सिस्टमेटिक है ही नहीं अंदर इसको ठीक करना है हमें ना क्लाइंट बिल सब कॉन्ट्रैक्टर बिल अदर्स ऑडिट रिपोर्ट वो सब चीज़ें सिस्टमाइज करनी है वर्क स्कोप कहाँ है आपका वर्क स्कोप अभी नहीं है सर अरे तो कर क्या रहे हैं हम चलिए क्वांटिटी टेक ऑफ कर रहे हैं क्वांटिटी टेक ऑफ करना है हमने अच्छा अच्छा कौन है वहाँ पे आपके साथ टीएल मैं अभी अकेले हूँ सर अच्छा अजय सर को रिपोर्ट कर रहा हूँ ओके 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 ठीक है तो क्यूटीओ इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ असाइनमेंट जहाँ पर चीज़ें डिफरेंटली होती हैं इट्स नॉट अ टिपिकल ऑडिट है ना तो ठीक है वहाँ इस हिसाब से रख सकते हैं बट क्लाइंट का नेम आपको पता होना चाहिए मेरा है ना हर किसी को पता होना चाहिए हम किसके लिए काम कर रहे हैं ठीक है आप आउट हो जाओ सूरज आ गए कि वॉशरूम से सूरज यस सर सब ठीक ठाक हाँ सर बिल्कुल सर चलो बढ़िया एक बार सिस्टम एक्सेस दे दीजिए हाँ डाउनलोड्स ऊपर हाँ जी ठीक है डी ड्राइव जीशन कौशिक सूरज ओके सूरज ओपन अभी किस पे काम कर रहे हैं अभी जय कुमार सर खोलिए डाटा फ्रॉम क्लाइंट वर्किंग रिपोर्टिंग एंड वर्क इसको खोलिए वाह बढ़िया ठीक है मंथली रिपोर्ट्स ऑडिट ट्रैकर खोल लो एक बार अपडेट हो रहा है ये अपडेट तो सर पर डे के हिसाब से तो नहीं हो रहा है काफी दिन हो गया अभी अपडेट तो करना है ना हमने इसके ऊपर स्पेसिफिक सेशन भी लिया था ट्रैकर अपडेट के लिए थे आप सेशन में हाँ सर यस सर तो फिर क्या फ़ायदा हुआ सेशन का अपडेट रखो यार देखो चीज़ें यही अपडेट नहीं रहेंगी तो फिर कैसे होगा ठीक है चलो फोल्डर तो ठीक मेंटेन है अपडेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग तो गाइज देखो ठीक है थैंक यू सूरज तो देखो हमने ये 5-7 लोगों का एग्जांपल लेके यहाँ पर स्क्रीन इसलिए शेयर करवाया जिससे हमें आइडिया हो जाए जो लोग मेंटेन कर रहे हैं तो वेरी अप्रिशिएबल
हम लोगों ने फोल्डर मैनेजमेंट को लेके पहले भी सेशन लिया था, तो अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई तो इट्स रियली मतलब इट्स वेरी अप्रिशिएबल फॉर ऑल ऑफ़ यू, एंड हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। एंड अगर बाई एनी चांस किसी का भी नहीं मेंटेन हुआ, जैसे भी एक पर्सन का था डेस्कटॉप, मिराज का डेस्कटॉप पे सेव था डाटा, तो आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लें उसको, आज ही कर लीजिए, है ना। अब आज के बाद किसी का भी सिस्टम कभी भी किसी के पास एक्सेस होता है तो वो डाटा इसी मैनर में ही मेंटेन हमारा होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो अब हमने देख ही ली हैं 5-7 लोगों का, कि हमें क्लाइंट नेम का पता होना चाहिए, फोल्डर के अंदर डाटा किस हिसाब से होना चाहिए। रिपोर्टिंग, देखो मैं ये आप सब लोगों से स्पेशली बोल रहा हूँ, सभी टेक्निकल गड़बड़ हो टीम गया, को ध्यान रिकॉर्डिंग नहीं रखना है है कि रिपोर्टिंग, अपनी रिपोर्ट आपको खुद क्योंकि ड्राफ्ट करके ही देनी है। मैंने अब खोल दिया इसमें, ये सारे ब्राउज़र सूरज में। म्यूट कर लीजिए। यस सर। हाँ, तो ठीक है, सभी टेक्निकल टीम अपनी रिपोर्ट खुद ही ड्राफ्ट करके देगी कॉमर्शियल टीम को। इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई टेबल उन्हें दे दी या अपना एक्सेल्स उन्हें दे दिया और वो अब ड्राफ्ट कर रहे हैं, आप बैठ गए उनके साथ, नहीं, आपको उनके साथ बैठना तो है ही है, बाद में वो रिपोर्ट को रिफाइन तो करेंगे ही करेंगे, बट दिस इज़ आवर ड्यूटी कि हम अपना पॉइंट ड्राफ्ट करके अपने एंगल से, जैसे भी हमें लिखा जा रहा है हम वैसा अपना बेस्ट, ठीक है, अपना बेस्ट लिख के दें सारे कॉलम्स के साथ। सारे कॉलम, आई मीन टू से रूट कॉज है तो रूट कॉज, रिकमेंडेशन है तो रिकमेंडेशन, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, एवरीथिंग वो लिख के कंप्लीट करके ही हमें अपनी स्लाइड आगे फॉरवर्ड करनी है, एंड ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। सो जो स्लाइड है, जो फोल्डर मैनेजमेंट की स्लाइड है, वो आप लोगों को अभी इस मीटिंग के जिस बाद शेयर हो जाएगी मेल पे। किसी का कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। Okay, thank you. You can resume your regular work. You may leave now. Thank you.